Okay, so we are starting the topic understanding fixed income, risk and return. That is the topic what we have. Okay. See, an investor would invest in stocks or bonds. Traditionally, these are the two investment options available to him. It is pretty simple to calculate the return on stock, but the return on bonds is not that easy. Okay. So, a return on bonds, what do you get? It is not that easy to calculate. And today's chapter, we are going to see how to calculate return on bonds. Okay. So let's go ahead. Now let's start with this sources of returns, or you can say sources of cash flow. Fine. Basically focus much on this. So there are three sources of return for a bond holder. Can you tell me, can you guess and tell me what can be that? अगर आपके पास एक बॉन्ड है तो आपके तीन सोर्सेस ऑफ रिटर्न क्या क्या रहेंगे? Their interest, principal, and the डेफिनेटली price change. कूपन. कूपन क्या रहेगा? The agreement between the company and you, as per which the company has promised to pay you the interest or the agreed interest. Okay. अच्छा, second क्या बोला तुमने शिवांग? Principal payment and the price change of the Principal is bond. definitely you are going to get whatever you have put, you are going to get definitely. Okay. So मैं principal तो नहीं बोलूंगा, जनरली मैं उसको फेस वैल्यू बोल दूंगा. चलो, फेस वैल्यू बेटर टर्म होगा. ओके. और उस दिन का, लाइक ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, उसका जो वैल्यू मिलना है आपको, मार्केट वैल्यू. यानी अगर मैं मार्केट वैल्यू से मेरा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट वैल्यू? फेस वैल्यू इफ यू होल्ड टिल मेच्योरिटी. Market value if you sell it before the maturity period. It is not a necessity that you should hold this bond till maturity. ऐसा कुछ नहीं है. You can, being an investor, you can sell it before maturity also, and that day whatever the amount you want from the buyer is the market value of the bond. Correct? Yes. और थर्ड क्या हो सकता है? ये सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है इस पर्टिकुलर बॉन्ड का. यही स्टॉक और बॉन्ड को डिफर करता है. वॉट एवर द कूपन यू आर रिसीविंग एवरी ईयर, यू वुड ऑल्सो री इन्वेस्ट इट. व्हाट आई एम सेइंग, क्या करोगे आप लोग? Okay, reinvest. दैट इज व्हाट. यही इसका सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफर करवाता है. सी, इन केस डिफर नहीं करवाता है, वहां पर डिविडेंड को री इन्वेस्ट करोगे आप लोग. सी, द मनी व्हाट यू रिसीव yearly basis, you're not going to keep it idle. Correct? You're an investor, man. You're not someone who is just getting the returns and just keeping quiet. You're an investor. You want to reinvest and you want to gain something out of it. Fine. So मैं यहाँ पर 3 points लिख देता हूँ. Then we'll move forward. I'll tell you in US how the things go and the mechanism in US market. So यहाँ पर मैं लिखूंगा coupon, which I already explained you and the company what you have agreed. Face value on the maturity date of the market value when it is sold, and the third one is reinvestment of coupon. So I think the structure is pretty clear. Now let's move to the question and try to understand what returns we are earning. So I'm going to prove the same, these three things to you. The combination of these three is nothing but the return what you get from the bond. Let's see. See, let's take the face value of a bond, $1,000. This is on maturity you'll get. Let's take the coupon, that is 10%. Let's take the maturity, that is 10 years. Okay. And the yield to maturity is 12%. What do you mean by yield to maturity? The return what you're expecting from the bond if you hold the bond till the maturity date. Yeah. Fine. अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, ये वर्ल्ड में इतने, सी यू आर इन्वेस्टिंग ना,
शिवांग तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पोर्टफोलियो बनाया, इट सीम्स करेक्ट? Yes, sir. तो तुमने टेक्निकल एनालिसिस किया और फंडामेंटल एनालिसिस किया, फाइन। Yes. अब इतने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो क्या बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में? सी द Yes, फर्स्ट, sir. यस यस यस, यू आर सेइंग समथिंग। Yes, sir. Same technical and fundamental analysis ये की तो basis करना ही पे. है। एंड ये वॉरेन बफेट, ये राकेश झुंझुनवाला, ये लोग क्या करते हैं भाई? ये लोग कैसे इतना रिटर्न्स कमा रहे हैं? सी ऑलवेज दीज गाइज आर द अपॉर्चुनिस्ट्स। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इज व्हाट दे ऑलवेज सी। Okay. व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्राज? सी सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, वो कंपनी का तुम्हारे स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी नहीं हुआ है, ठीक है? अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुमको याद होगा हम लोग फर्स्ट चैप्टर करे थे वो गियरिंग अनगियरिंग वाला। You want some return, na? You want some Yes, expected return out of it. Why definitely. you expect some return out of it? Because आपको invest करना है, expected return चाहिए. This जी. expected return is used to find out the intrinsic value of the stock. Yes. Value of the stock या value of the bond, anything. You can find out the intrinsic value of the bond also. The only thing is what you want is expected return. What is that I'm speaking here? Yield to maturity. 12%. Can I say Yes. this is the expected return? What are you expecting? Yeah. Yes. So expected return कैसे मिलता है आपको? There are certain things like WSCC से भी calculate कर. See, you are going to start your revision. Okay. अब next chapters आपको मैं जो देने वाला हूँ cost of capital वही देने वाला हूँ. तो वहां पर यही चीज आपको समझना है. WSCC, CAPM, ये सबसे you will calculate your expected return. With this, Yes. you will find out the intrinsic value of the stock. Suppose it is $100, and this company's stock is trading at 60, for example. There you have the arbitrage opportunity. You can go long for this. How you can go long? You can buy at 60 and wait the time till it moves to 100, and you can get your returns. Yes. And if it is if it is like, for example, 140, you can go short. You can buy, you can do short selling. You can borrow and sell, and you can wait till the time it comes to 100. Then again buy and give to the person from whom you have borrowed. So यहाँ पर भी आप Yeah. 40 का रिटर्न कमा सकते हो. So in this way, these guys make returns. They won't invest until and unless there is a arbitrage opportunity. इसलिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या पोर्टफोलियो बनाने से पहले उसका इंट्रिंसिक वैल्यू पहले चेक करो. इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करोगे और देखोगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड जा रहा है कि ओवर वैल्यूड जा रहा है. ये हमेशा तुम जब तक ट्रेडिंग करोगे, ये तुम्हारे लिए एक मंत्र है. मैं नहीं, दुनिया के हर कोई यही बोलेंगे. नॉट द फर्स्ट वन हु इज कमिंग विद दिस. कोई भी यही बोलेंगे आप, ठीक है? So, provided, since I was speaking about YTM, and I think you have already heard about the IRR concept, am I right? क्या है IRR? Internal rate of return. वो तो मुझे भी पता है, but what is this? इसको और कैसे elaborate करेंगे? This is the rate at which you get your break even. That means present value of cash inflows is equal to present value of cash outflows. Simple way. Yeah, this is that rate at which your NPV is exactly equal to 0. ठीक है? तो ये रेट तो मिनिमम चाहिए हमें ये रेट तो मिनिमम से मिनिमम चाहिए. ये इसलिए हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है. तो ये सब मैंने यहां पर अभी पुट किया हुआ है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द रिटर्न व्हाट वी आर जनरेटिंग फ्रॉम द बॉन्ड. राइट? चलो, सो लेट्स गो अहेड. तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में मैंने इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके रख लिया है. कैसे करते हैं प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर होल पावर n. फाइन, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू. तो मैंने पूरा कैलकुलेशन कर रखा है. इन केस अगर आपको कुछ जानना है तो लेट मी शो यू समथिंग इन दिस. उसके बाद आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, कुछ ब्रशअप भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट. ये IRR आपको पता ही होगा, ये हम लोग करते थे, करेक्ट? तो अभी मेरे पास बॉन्ड की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास कैलकुलेटेड है. ठीक है, इसमें तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा. अगर मैं FRM का टेक्स्ट बुक खोल के बताऊं तो आपको मालूम हो जाएगा. आपको देखना भी जरूरी है. FRM वैल्यूएशन,
Very complicated chapter, but my initiative will be to make it as simple as possible for you. Yeah. तो ये आपका बॉन्ड वैल्यूएशन का ही है। इसमें देखो आपको मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पर। ये एक अलग लेवल का रहता है, इसमें आप लोग को मतलब क्या कंफ्यूजन होगा और ये बहुत टफ भी रहेगा। ठीक है, छोड़ दो, मैं आपको इजी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या है, दे यूज कंपाउंडेड रिटर्न्स, फॉर्मूला भी डिफरेंट यूज करते हैं फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर करता हूँ। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, so my present value I've already calculated 886.99 in your textbook also I'll show you examples whereby directly things are given. Okay, so ये 886.99 what I'm seeing here, so I start from 0. Okay, this is my present value, and then every year what I get till 10 years, what I get, coupon. Fine, so I get coupon in the first year of 100, coupon in the second year of 100, third year 100, and so on. Okay, now अगर आपके पास फाइनेंस कैलकुलेटर है और अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप ये कैलकुलेट करो, मैं इंस्ट्रक्शंस लिखता हूं। सो हाउ आई गॉट दिस, अगर आप चाहो तो इसको मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूं, 886.99 इज इक्वल टू आपका जो भी मतलब लाइक 100 डिवाइडेड बाय 1, जो भी आपका 1 प्लस 0.12 होल पावर 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 होल पावर 2। ये आपको फर्स्ट ईयर के एंड में आपको जो कैश फ्लो आएगा, दिस विल बी योर फ्यूचर कैश फ्लो, एंड इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू में लाना है डिस्काउंट करके। ये आपका 10 इयर्स तक चलता जाएगा, एंड लास्ट ईयर इन द 10th ईयर you'll get 100 divided by 1 plus 0.12 whole power 10, as well as I'm writing 1000 also here, because on maturity you'll get your principal also. You agree with my point or not? Yes, sir. Yes. Yeah. तो ये वाला जो है ये अपन कॉलमनार में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये पूरा करने के बाद मुझे आने की चीज यही है। नाउ टेक आउट योर फाइनेंस कैलकुलेटर्स एंड मेरे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कैलकुलेट करो। एफवी 1000, Yeah. पीएमटी 100, एन 10, आई बाई वाई 12, कंप्यूट पीवी, you should get 886.99. आई एम सॉरी, मेरे पास कुछ कैलकुलेटर का कुछ अभी नहीं है। आई थिंक हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं क्या इसमें स्टोर से? अगर कुछ है तो बताओ, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर फोन में तो कर सकते हैं सर, स्क्रीन पे नहीं होगा। फोन पे कर सकते हैं, वही है। Yeah, in phone we got this. हाँ, तो ये Okay. इंस्ट्रक्शन लगाइए सर। पहले तो आप लोग Okay, पूरा like how to enter? I want to say आप how to क्लियर proceed. टीवीएम पहले पूरा क्लियर कर दो, आपका स्क्रीन क्लियर करो, पूरा स्क्रीन क्लियर करके देखो। Yeah, yeah. आप पहले 1000 टाइप करो, 1000 Okay. 1000 टाइप करके एफवी टाइप करो। FA के ऊपर एक बटन है. Okay, I have. हाँ, एफवी Okay. को ही क्लिक करो तो आपको वहां पर स्क्रीन पे लिख के आ रहा है एफवी इज इक्वल टू 1000। Yeah. पहले एफवी नहीं, पहले 1000 क्लिक करना है आपको, पहले 1000 Yes, टाइप sir. करो। Yes, हाँ, हाँ. yes. Yes, 1000 yes. टाइप करके एफवी क्लिक कर दिया, खत्म, वो हो गया। अब Yeah. 100 टाइप करो। Okay. अब पीएमटी बोल के जो बटन है उसको क्लिक करो। Okay. Yeah. उसके बाद 10 टाइप करो। Okay. एन बोल के बटन है उसको क्लिक करो। N.
हाँ, n नंबर ऑफ ईयर्स। Yeah. Okay. ओके, उसके बाद 12 टाइप करो और आई बाई वाई बोल के बटन रहेगा, वो सेकंड या थर्ड में आपको लाइन से दिखेगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। Yeah. Yeah. हाँ सर। Okay. हाँ, आई बाई वाई क्लिक Yeah. करो, उसके बाद सीपीटी बोल के बटन दिख रहा है आपको, CP. कंप्यूट बोल के बोलेगा वो, सीपीटी वही वही दिखेगा, आई बाई वाई के आसपास दिखेगा। हाँ Yeah. दिखा मतलब, CPT. हाँ सीपीटी Yeah. क्लिक करके पीवी क्लिक मारो। Okay. Minus 886.99. खलास आ गया आपको Yeah. भाई, माइनस 886.99। Oh. Minus भाई भाई outflow. Outflow. clear, that is the investment you have done in the bond. Okay, so you have invested Yeah. this much, you have invested this much, fine. So this is शिवांग, तुम्हारे को भी आ गया क्या? हाँ सर, माइनस 886.995। हाँ, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट करके आपको 1000 तो मिल रहा है मैच्योरिटी पर, और हर साल आपको कूपन भी मिल रहा है, कूपन को भी आप इन्वेस्ट करोगे एवरी ईयर। तो अब हमको देखना है कि आपको रिटर्न क्या आ रहा है इससे। फाइन, चलो आया ना मजा कैलकुलेटर से, 1 सेकंड में काम होता है देखो। तो अभी आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 886.99 एवरी ईयर, यू रिसीव 100। अगर आप 886.99 को अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो हर साल आपको 100 का कूपन आता रहेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका रिटर्न कैसे कैलकुलेट हो रहा है देखो। आपको फेस वैल्यू 1000 मिलेगा ऑन मैच्योरिटी। आपको जो कूपन है, आपको 10 इयर्स तक आपका कूपन पेमेंट मिलेगा, 10 कूपन पेमेंट्स। ओके, इंटू $100 का एक एक पेमेंट है, तो यहां आपको $1000 मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये कूपन को आपने री इन्वेस्ट किया है, एवरी ईयर यू गॉट 100, यू री इन्वेस्टेड दैट एट द रेट ऑफ 12% इन फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर यू गॉट 100 का कूपन, यू री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12% सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर यू गॉट 100, यू री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12%। तो उसका रिटर्न आपको 754 आ गया फॉर एग्जाम्पल। ओके, री इन्वेस्टेड इनकम। सो नाउ अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, ये कैसे आ रहा है, उसके लिए भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं, कैलकुलेट करो। हेलो, Yeah. कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। सी, उसके लिए Yeah. कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एन्युइटी करना पड़ेगा। यू शुड कैलकुलेट दी एन्युइटी। एन्युइटी मीन्स देर इज एन्युइटी फैक्टर यू कैन डायरेक्टली गेट फ्रॉम दी टेबल। ओके, Okay. 10 इयर्स का 12% के हिसाब से आपका एन्युइटी फैक्टर क्या होता है, वो भी आप लेके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका ये इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है वो मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, और एल्स अगर वैसा नहीं चाहिए तो ऐसा कर लो, देखो अपना कैलकुलेटर लो, 100 इज इक्वल टू पीएमटी। ठीक है, 10 इज इक्वल टू एन, आई बाई वाई इज इक्वल टू 12%, कंप्यूट एफ वी कितना आ रहा है बताओ। थाउजेंड। 1000 नहीं, 1000 कैसे आएगा, फ्यूचर वैल्यू आएगा ना, 1754 आना चाहिए। आपके उसमें सिंपल एन्युइटी बोल के कोई एक ये है क्या, मतलब बटन है? नहीं सर, सिंपल एन्युटी तो नहीं दिख रहा नहीं है। है? एनपीवी आईआरआर है। ठीक है, एक काम करते हैं, वो टेबल से निकाल के देता हूँ। Directly last FV आना ना? हाँ, एफ वी 1000 आ रही। हाँ सर, 1000 ही आ रहा है। ठीक है ठीक है, I'm just searching for this annuity. नहीं है शायद. है रहता रहता। Okay. Amount.
Okay. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी चाहिए। हाँ, 10 इयर्स आपका 12% के ऊपर 17.548 है। मिला आपको 17.548 मिला ना? तो ये 100 आपका जो भी ये आपका 100 का पेमेंट है, 100 इंटू 17.548 करो। वही 1754। उतना ही आया ना? बस दैट्स इट। तो ये आपका, इसमें आपको सिंपल एन्युटी बोल के एक रहेगा, आपको बटन रहेगा, अगर आप उसको देखो तो आपको दिखेगा आपके उसके स्क्रीन पे। मेरे पास भी ऐप नहीं है, मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। दिखा क्या आपको सिंपल एन्युटी? नहीं STO ओके साइन कॉस्ट आने ओके। मिला नहीं मिला? नहीं ठीक है, छोड़ दो उसको, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके या तो ये आपको क्या मिल रहा है सी, ये पूरा मिला के आपका जो बन रहा है वो 1754 बन रहा है। दैट मीन्स $1000 आपको कूपन जो आया, आपने एवरी ईयर अपने कूपन को 12% के ऊपर इन्वेस्ट करते गए। सो दिस इज व्हाट यू गॉट। सो नाउ अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से, योर फ्यूचर वैल्यू इज 1754 minus 1000 what you invested, 754 is the return you got. Okay, अब आपका टोटल रिटर्न क्या बन रहा है आपका इसके हिसाब से? व्हाट इज द टोटल रिटर्न? 1000 प्लस दिस 1000 प्लस 754, व्हाट इज दैट? 2754। 275 करेक्ट? करेक्ट और रॉन्ग? या नाउ तो अभी आप लोग को जो भी ये आपका मिला है रिटर्न, ठीक है, ये जो भी आपका रिटर्न आपको मिला है 2754, लेट्स कम टू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आप देखो एक बार ध्यान से। व्हाट इज दिस बुक? विच बुक दिस इज? 4 ओके। The page number. What is the book 4 ही है ना? Yes, sir. Book 4 final chapter. asset backed securities के next अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अरे कंटेंट पेज में जाके देख लेता हूँ। इधर है इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिक्स्ड इनकम ओवरव्यू, इसमें तो है ही नहीं मेरे बुक में। बुक 4 में मेरे तो है ही नहीं। दूसरा बुक है, बुक 5 है शायद। इसमें मिलेगा, ठीक है चलो।
सो नाउ देयर इज अ फॉर्मूला हियर, अगर हमको रिटर्न मालूम करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट आपने जो किया वो कितने का किया, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू कितने का है अपने क्वेश्चन के हिसाब से 886.99, कितना जनरेट किया आपने 2754 होल पावर 1/10 -1। जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर। अगर आपको कैलकुलेटर से करना है तो भी आप चाहे तो कर सकते हो। प्लीज टेक योर कैलकुलेटर। प्रेजेंट वैल्यू minus 886.99, future value 2754 in 10 years, compute I by Y, you should get 12%। करके देखो, take out your calculator and do this। Are you getting 12%? 1 second, sir. Yes, yes, yes। No, sir, I got 19.56. 19.5 नहीं, आपको ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। आपको 886.99 जो है वो प्लस इसको इसको टाइप करके प्लस माइनस का सिंबल रहेगा, उस पर क्लिक करना है, यू विल गेट -886.99। वो आपको कंपलसरी देखना है। फिर से करो वापस, 886.99 टाइप करके प्लस माइनस साइन है वहां पर क्लिक करो, माइनस साइन आएगा बाजू में, नहीं आ रहा सर। नेगेटिव वैल्यू बनेगा वो। आ नहीं रहा है सर नेगेटिव उधर साइन। है अपने कैलकुलेटर में रहेगा। हाँ कैलकुलेटर में है पर डाल रहा हूँ उधर आ नहीं रहा है। ये ऐप में ऐप बेस्ड में यही प्रॉब्लम रहता। और सर आप 19.56 का। नहीं सर, आपको 12% आना कंपलसरी, मेरा किया हुआ है। ओके मैं माइनस 886 लिया, माइनस लिया। सर माइनस मैंने भी माइनस ही लिया था स्टार्टिंग में। आई एम से लाइक प्लस और माइनस की क्लिक करा था। ओके अगेन आई विल डू 1 सेकंड। हाँ 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 886.99 minus of present value 2754 of ये ऐप वाले जो भी है ना, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, ये रॉन्ग आंसर्स भी बहुत देते हैं लोग, बहुत बार होता है ऐसा। सो उसके लिए अपसेट नहीं होना, होता है ऐसा। हम तो बहुत बार ये चीज प्रूव भी कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे क्लास में। स्टिल 19.56। 19.56 वो यार जब तक मे आपका बी। कैलकुलेटर नहीं आएगा ये लोचा रहेगा। अब ये लगा के करो, इससे ठीक आंसर। है देखो मैं करके दिखाता हूँ, इसमें मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, अब लिखो। ओके 2754 divided by 886.99 is 3.10 whole power 0.1 power 0.10। अच्छा आपको 19 आ रहा, मेरे को भी 19 आ रहा। 12% आना चाहिए। Yeah, in this one can we enter this both numerator and denominator ऐसे एंटर कर सकते क्या? नहीं, पहले दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड करके होल पावर 1/10 -1, टेक्स्ट बुक में वही अपना जो फॉर्मूला सर है। होल पावर 1/10 कैसे करेंगे? 1/10 को पहले ले लो, 1/10 को पहले लिख लो, लिख के वो कर लो, क्या बोलते हैं अपना 0.10 कर लो। हाँ फिर
फिर क्या, वो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर में पावर वाला एक्स पावर वाई वाला एक साइन रहेगा। y पावर x रहेगा, राइट? ओके। हाँ, वाई पावर एक्स है जो भी, उसमें हाँ खुद हाँ। कर लो। Even I click 5 power x 8 to 7. What I'm receiving on payments. What is the answer? Point. You should get the yield to maturity 12%. Return is that only, na? Okay. 19% ही आ रहा है ना सर? वो 19 ही आ रहा, रिटर्न ज्यादा आ रहा, मतलब यही है कि आपको उसका क्या है, मतलब एक अलग केस है कि उसमें अगर आपके मार्केट में रीइन्वेस्टमेंट रेट बढ़ेगा तो आपका यील्ड भी बढ़ेगा, वो केस है उसमें। कैसे हो रहा होगा, कैलकुलेट किया था इसमें। 6.99375 रीइन्वेस्टमेंट। इसमें रीइन्वेस्टमेंट रेट भी तो मैं 12% पे ले रहा हूँ। एक सेकेंड, दिस इज लाइक 7% एंड 6% एनुअल। अच्छा, ये वाला करके देखो एक बार, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा, सी, यही एग्जांपल ले लेते हैं। हेलो, Yeah. यस सी, सर। सेम हमारा जो किए वही कर रहे हैं। ये हमारा कूपन है, मेरे क्वेश्चन में कूपन 10% है, यील्ड टू मेच्योरिटी 7% है, मेरे उसमें 12% है। तो ये मेरा जो है ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया। और लाइक कूपन यहाँ पर 3 इयर्स का है, टाइम 3 इयर्स एंड 3 इयर्स है। एंड आपका जो री इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं, मैंने भी री इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो री इन्वेस्टमेंट करते करते जो भी कैलेंडर हुआ है वो 1754 बना, इसका 192.89 हुआ। एक्चुअली 60 into 3 कूपन पेमेंट्स, इट विल बिकम 180, करेक्ट? हेलो, and every Yeah. time you are reinvesting your 60, you're reinvesting your 60, so that has become 192.89। तो आपका इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 12.89। सो 1000 आपका मेच्योरिटी पे जो वैल्यू आपको मिलेगा, प्लस 3 कूपन इंटू 3 coupon, each coupon payment is 60 into 3, Yeah. 180 plus the interest, what do you got, that is 12.89, correct? मेरे एग्जांपल में वही लिया मैंने, 1000 मेरे को बॉन्ड का मेच्योरिटी में मिलेगा, 1000 मुझे कूपन का मिलेगा, 754 मुझे इंटरेस्ट का मिलेगा। तो दिस इज व्हाट आई गॉट हियर। चलो इसमें करके देख लो, कोई बात नहीं। सो इट हैज बिकम 1000, this one 1000 plus 180, 1180 plus 12.89, 1192.89 divided by your present value 973.76 whole power 1 by 3, 1 by 3 is 0.33, minus 1 करो तो गेटिंग 7%। ये करके बताओ मुझे आ रहा है क्या? Jayant, इधर ऊपर PV दे कितना -973. Even that calculation is also getting wrong in ours. -10,000 आ रही. नहीं सर, आपका फ्यूचर वैल्यू 1000 है। Minus, I mean to say 1078. ऊपर का इक्वेशन PV का वैल्यू. नो, Just n is equal to 3 किया आपने, I by y 7, पेमेंट 60, फ्यूचर वैल्यू 1000, यही आएगा आपको। I by y equal to EMT. हेलो, Yeah, Jayant. शिवांग कर रहे हो? हाँ सर। करो करो करो। Yeah. Okay. -973. Okay, fine. प्लीज डू दिस एंड टेल मी 7%।
Yeah, Jayant, how to take this y power x? Actually, division करके 1.225 आया. कि आपका जो फोन का कैलकुलेटर है सर, उसमें आपको साइंटिफिक वाला ओपन करो तो आपको 1000